Good morning, students. Welcome to DSS online classes. In previous lecture, we learned about speed, displacement, and distance. But our today's topic is velocity, right? Okay. In last lecture, uh, you already learned about speed. Similar, just like speed, our new topic is velocity. Velocity. Okay. Our new topic is velocity. What is main difference between speed and velocity? Speed is a scalar quantity. Velocity is a vector quantity. Scalar quantity. In scalar quantity, there is no need of direction, but in vector quantity, there is a specific direction, right? Okay. If we talk about velocity, then we can say the rate of change of position with a specific direction is known as velocity. Velocity, the rate of change of position with respect to time, या तो आप लिख लीजिए with time is known as velocity. Okay, the rate of change of position, this means the rate of change of position in a particular direction. Okay, in particular direction, position in a specific or particular direction with time is known as velocity. Okay, rate of change of position in particular direction with time means, suppose a body A at t equal to 0 is here, this position at t equal to 0. After 2 seconds, body reaches to this position at t equal to 2 seconds. But you have to show the direction, right? At t equal to 0, body was here, and after t equal to 2 seconds, body is here. Let suppose x equal to 0 meter is this, and x equal to 4 meter is this, right? Okay. This is the change in position. From x equal to 0 meter to x equal to 4 meter is known as is called change in position with respect to time, because t equal to 0 second and t equal to 2 second. There is difference of 2 second between this position and this position. This is the position of A, initial position at body A is this, and final position is this. Change in position in particular direction, because we are talking about velocity, then you have to mention it particular direction, right? Okay, in a particular direction with time is known as velocity. Clear? Okay. Now, स्पीड और वेलोसिटी में जो मेजर डिफरेंस है, मैंने आपको बताया कि एक डायरेक्शन का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, राइट? बाकी सब सेम है. अब वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है, जैसे स्केलर क्वांटिटी स्पीड है, मतलब आप बोल रहे हो कि किसी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, मतलब वो स्केलर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि 20 किलोमीटर पर आवर मतलब उसने डायरेक्शन नहीं बताई है. लेकिन अगर कोई बता रहा है किसी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर इन प्लस एक्स डायरेक्शन है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी हो जाएगी, राइट? जैसे स्पीड, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल स्पीड
जैसे स्पीड ऑफ बॉडी इज 20 किलोमीटर पर आवर। ये 20 तो उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड है, और किलोमीटर पर आवर उसका यूनिट है। ओके, तो ये स्पीड है, मतलब उसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं की गई है। बट लेकिन अगर हम बोले वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 20 किलोमीटर पर आवर इन प्लस एक्स डायरेक्शन, 20 इज मैग्नीट्यूड, किलोमीटर पर आवर इज यूनिट, एंड प्लस एक्स डायरेक्शन, इट हैज मेंशन एट प्लस एक्स डायरेक्शन, वो तो डायरेक्शन होगी, राइट। तो ये जो डायरेक्शन है ये बता रहा है स्पेशलिटी इस वेलोसिटी की, राइट। ओके, तो वेलोसिटी हो गई, यूनिट तो सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट इसमें डायरेक्शन आ गई है, तो ये वेलोसिटी हो गई। क्लियर? अच्छा, वेलोसिटी कितने टाइप की होती है एक बार ये देख लीजिए, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होती है वो अपना एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलो पहले वेलोसिटी के बारे में, ये तो जैसे मान लो स्पीड के बारे में लिखना था ये, और वेलोसिटी का एग्जांपल ये। स्पीड के बारे में, अगर स्पीड के बारे में बोला जाता तो ये लिखते हम लोग, और वेलोसिटी के बारे में बोला जा रहा है तो ये लिखेंगे, उसमें एक डायरेक्शन मेंशन करके। क्लियर? ठीक है, तो मैंने आपको बताया वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, और वेलोसिटी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी का यूनिट तो सेम होगा, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, और उसके बाद टाइप्स हम बताते हैं इसके, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वेलोसिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात वेलोसिटी, पहली बात है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। स्पीड वेक्टर नहीं है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है और यूनिट तो साथ में होती है, राइट, बट वेलोसिटी में वेक्टर है एज वेल एज डायरेक्शन है। दूसरी बात, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके, ये दो बातें वेलोसिटी के बारे में। अब हम लोग को वेलोसिटी के टाइप के बारे में पढ़ना है कि वेलोसिटी के टाइप, किस किस टाइप की वेलोसिटी होती है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, ठीक है। ओके, अब हम लोग को बात करनी है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। लिसन, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड है एवरेज वेलोसिटी। फोर्थ है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। ये कुछ चार टाइप की वेलोसिटी होती है। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरा एवरेज वेलोसिटी और चौथा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। हम लोग वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में देखो, पहले सुन लीजिए मेरी बात, फिर हम लिख देते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल कि 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में, अगले 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में, अगले 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में, अगला 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हाफ सेकंड में। जैसे इक्वल इंटरवल हो, इक्वल टाइम हो, राइट। अगर ऐसा कर रहा, फर्स्ट 2 मीटर फर्स्ट सेकंड में, अगला 2 मीटर भी अगले 1 ही सेकंड में,
अगला 2 मीटर भी अगले 1 ही सेकंड में। तो ऐसे वेलोसिटी को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अगर लिखना हो तो ये आप चारों लिख लिए होंगे। ओके, उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अगर लिखना हो हम लोग को तो बोला जाएगा इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कॉमा सच टाइप ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Okay. If a body covers equal displacement in equal interval of time, comma such type of velocity is known as uniform velocity। वो इंटरवल ऑफ टाइम स्मॉल भी हो सकते हैं, मे बी स्मॉल मे बी लार्ज, राइट। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। दूसरा हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ठीक है। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन unequal interval of time and unequal displacement in equal interval of time, comma such type of velocity is known as non-uniform velocity। ओके, लिसन, इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है, राइट। जैसे मान लो पहले बॉडी 2 मीटर चली 1 सेकंड में, अगले 2 मीटर चल गई 3 सेकंड में, अगले 2 मीटर चल गई 2 सेकंड में। इस तरीके से कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो लेकिन टाइम चेंज हो। और अगर कुछ ऐसा हो कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, टाइम सेम हो, जैसे 1 सेकंड में 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। उसके बाद थर्ड होता है एवरेज वेलोसिटी। थर्ड हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी is the ratio of total displacement to that of total time. It is the ratio of total displacement to that of total time taken by body। तो एवरेज वेलोसिटी जो लिखेंगे हमेशा उसको लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, ये होगा एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है
और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर यही हम लोग को स्पीड डिफाइन करना होता, स्पीड जो कि आप पढ़ चुके हो, तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहां पे स्पीड आ जाता, इसमें डायरेक्शन आ रही है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहां पे डिस्टेंस आ जाता, इसमें डायरेक्शन है उसमें डायरेक्शन नहीं मेंशन की जाती। क्लियर? बाकी सब टाइप सेम है। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक लास्ट टाइप और बचा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। velocity of a body at a particular instant of time is known as instantaneous velocity. फोर्थ है instantaneous velocity. Velocity of body at a particular instant of time is known as instantaneous velocity. ओके, पर्टिकुलर टाइम का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप बाइक अगर चला रहे हैं, मान लो कोई बाइक चला रहा है, तो देखो उसमें बाइक में लगातार स्पीडोमीटर स्पीड दिखाता है कि 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 30 किलोमीटर पर आवर, फिर 25 किलोमीटर पर आवर, फिर 60 किलोमीटर पर आवर। हर टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे लगातार वो स्पीड दिखाता रहता है। ऐसे ही अगर किसी तरीके से हमको पर्टिकुलर टाइम पे, हर एक टाइम इंटरवल पे, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल, अभी, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, ऐसे लगातार हर एक टाइम पे अगर उसकी वेलोसिटी कोई कैलकुलेट करके दे रहा है, तो वो हमारी पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। इंस्टेंटेनियस का मतलब है हर वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, अभी, फिर तब, फिर तब, फिर तब, थोड़ी देर के बाद, इस तरीके से। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, हर एक छोटे से टाइम इंटरवल पे, अभी कितनी है, फिर थोड़ी देर बाद फिर कितनी होगी, फिर कितनी होगी, ऐसा जो चेंज आता है ना, ये थोड़ा पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद की बातें हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। ओके, थैंक यू।